just want to talk about day-to-day relationship challenges. That is the intention of this call. So only Yeah. this is the setup. So we are not talking about anything and everything. We're not talking about work or career or anything like that. The focus is only on relationship-related challenges that we have faced in the past or we are facing. Once again, we will not be talking about hypotheticals also, that this is not just like a discussion कि ऐसा है like किसी friend का ये हो रहा है या वो हो रहा है ऐसा नहीं. So it's more like personal. You don't have to talk about the details of it or anything like that, but you can in a like a generic way you can post your question and we can just explore that kind of things, but something which you either have faced in the past personally or you are currently facing. So that is what we would like to talk about. So if anyone has any suggestion, anything they wish to propose, we can go ahead with the conversation. Vikesh, you wanted to say something? I want to say that relationship is the only major thing which we all are facing. Let it be personal, let it be professional, let it be any thing. Because relationship are professional also, personal also, but it affects both life, miss personal life also, professional life also. If you are not comfortable in personal life, you're not able to perform at professional life. If you're not uh, working not able to perform at professional life, your personal life will also be affecting like anything. Means relationship really matters. Means it's how you manage it is. I can quote my example that my father has expired 2 years back. Yeah. Mm-hmm. I have a daughter, I have a wife, I have a sister, I have a mother. ठीक है ना? I'm I am I am the only miss Mm-hmm. बीच का आदमी हूँ जो who is managing all the four relationship. ठीक है ना? I am trying my Right. best to Huh. maintain whole family at one place that I have not able to. I am trying my level best. You can say I'm failed. I'm trying my level best to. Acha. चार लोग हैं, पांच लोग हैं, एक मिलके अच्छे से रह सकते हैं, बट वो सबका ईगो क्लैश है और नो वन इज रॉन्ग. आई थिंक मैं सोच लगा Mm-hmm. आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट एबल टू मैनेज इट, आई एम रॉन्ग. That's the my story. I can say like Now, who are the four women you said? Your mother, your wife, your daughter, and your and sister. sister. Yeah. Okay, okay. My So you're surrounded that by all all four women. ladies, all four ladies, all age groups, all something like you can say. Lot of women empowerment. Which I can say I'm learning how to do, how to not to do, what to do, not to do. But I'm miss sometimes I'm able to manage, sometimes I don't. Eh, Uh, That's uh, uh. So you're from what you're saying, I'm getting that you are thinking that it is your job to manage. yeah. I miss after father, it's now Why is my it duty your that job? So I why is it yeah, your you're duty? absolutely. Because I think that after father, it's my responsibility to manage all these things, all the relationship, so that all should go along with this. And you all guys, all of you live together? Like all five of you? Oh no, my sister is married. She's staying in the same city. ठीक है ना? Recently, Mm-hmm. I got a job in Rajasthan, where they used to stay during COVID period. We used to stay all along, but my sister is staying in the with his husband in the same city in the Lucknow only. Now I have got a job. Recently, I got a job in Rajasthan. I have shifted. आई एम इन अकेले आया हूँ मैं अभी टोटली दैट. नाउ माय daughter and mother are staying in Lucknow. My wife is staying with his father in Delhi, and my sister is staying in Lucknow. Miss,
still I am puzzled how to manage all these things. This thing I can say. If I can ask you one question here, Yeah. what exactly is your idea of managing? Means managing that वो होना क्या चाहिए? What is it that you are trying to achieve? कि वो थोड़ा सा मदर सुन ले, थोड़ा सा वाइफ सुन ले, थोड़ा सा वो कर लें, थोड़ा सा सबका मिस थोड़ा सब कर लें और इट विल बी मैनेजेबल, ठीक है ना. अब सिस्टर इज विद द मदर, बोलती है कि फादर नहीं है तो मुझे मदर को ज्यादा देखना है. आई से यू कैन पिच इन बोथ द रिलेशनशिप एंड यू कैन मैनेज इट. बट किसको समझाऊं, मैंने अब छोड़ दिया किसको समझाना. मैं खुद समझ रहा हूँ कि छोड़ दो, किसको जो करना है करने दो. ये मेरा है. ये जो आप बोल रहे हो, ये आप समझ रहे हो, समझाना छोड़ रहे हो, ये आप रियलाइजेशन के एंगल पे बोल रहे हो या इस एंगल से बोल रहे हो कि आपसे हो नहीं पाया इसलिए अब आप? हाँ, हो नहीं पा रहा कि मैं. अच्छा, अगर हो पाता तो फिर समझने की कोशिश नहीं करते? हाँ, मैं खुद पजल्ड हूँ कि क्या है क्या. कोशिश करते. हाँ, लेकिन अब प्रॉब्लम पता क्या है लाइफ में, हमें क्या चाहिए हमें ये खुद नहीं पता होता. क्योंकि जब हमें मिल जाता है ना तो फिर हम सोचते हैं कि यार ये तो नहीं चाहिए था, हमें तो वो चाहिए था. हमको यही हम लोगों को यही परेशानी कि हम लोगों को चाहिए क्या यही नहीं पता होता हमें. ये मेरा माय पॉइंट ऑफ व्यू. आई एम नॉट सेइंग किसी की तरह. Hope I am not diverting the topic. I am really sorry if you have diverting the topic. No, not at all. This is a very, we are glad that you shared anyway. it. Yeah. I think this is a very important topic because I think all of us face this. Yeah, we all Every other day. absolutely very difficult to manage the ladies. To 4 of them with 4 different. Oh God, hats off to you. Seriously. Yes, very difficult. All have different journeys and emotions level, and very difficult to manage with them. Even I have a boss, very tough boss, and at home also. So there are very different things altogether. Sometimes you get really pissed off how to manage all of them. Yes, absolutely. We can correlate with you because everybody is sailing in the same boat. मैंने सोचा कि मैं बाहर आ जाऊँ, अलग अकेले रहूंगा, मैं टेंशन फ्री रहूंगा, अब जोन में जिसको मन में जो करे, ठीक है. बट ऐसा कुछ नहीं होता है. आपको सबका सुनना है. ये हो गया, ऐसा हो गया, मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता. जिसको जो करना है करे. आप करो जिसको जो करना है. You can't run away from these practical things. अब enjoying this thing, आप कैन से अब जीना पड़ेगा. ऐसे जियो, खुश रहो, जिसको जो करना है करने दो. So essentially they are looking for solutions from you. हाँ, solutions मांग रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स का. वो अब उनको लगता है कि आई एम बेस्ट टू देम. अब उनको लगता है आई एम बेस्ट टू देम. अब मैं बाइस होके क्या करूंगा. For me each and everyone is important. Each and everyone has got its value. For me, I have to manage things. I have to own the things. I can't run away from the things. I had one question for you, Vikesh. In this all, Yeah. Are you? I mean, just the financial aspect. Yeah. If you don't mind me asking. No, sure. Yeah. Are you taking care of all of them financially as well? Yeah. Now my sister is he's professional. She's a banker. She's doing good, better than me. Mm-hmm. So I've got during COVID period I lost my job. Mm-hmm. But I got a severance money from that company. So during the financial period, I was able to manage because I got the severance money for the 1 year. I was not having a job. I was working with someone. He didn't give money. So financially, I was able to manage it because I've got the severance money, and now last month I've got the job also. So financially, I want to manage. My mother is also getting the pension also. So financially, there is no so much. That's why I say that there is no such pain. Everyone is well fed and well. There is nothing like they are all managing well. Okay. So financially is not a concern. It's not much. We are able to manage it. Without job, I used to manage. Now I got the job also. So it's okay.
That's the thing. Okay. And what do they expect from you? I mean, is there a common denominator that they expect from you attention, or they Yeah, yeah, want? yeah, yeah. Everyone wants attention that मिस तुम मेरी मिस उसकी सुनते ज्यादा हो, मेरी कम सुनते हो, वो उनके उनसे बायस्ड हो, उनसे उनका सुनते ज्यादा हो. अब मैं किसको क्या बोलूं कि मैं किसका ज्यादा सुनता हूँ. अब मेरे को सबको ऐसा. You won't believe, Vikesh. हाँ, You know, जितने भी मेरे मेल clients रहे हैं, हाँ, at least half of them have gone through this problem कि उनकी wives और उनके mothers and maybe their sister or their हाँ, दिस इज daughter. नॉर्मल. या दिस इज नॉर्मल, Yeah. आई नो दिस इज नॉर्मल. मैं वही तो बोलता हूँ कि ये सबके साथ होता है, कोई नया यूनिक नहीं है. ये हाँ. जस्ट नॉर्मल. बट नहीं, उनको this लगता है is कि हमारा normal, ज्यादा. but this is a collective problem. हाँ, Okay, हाँ, मतलब कलेक्टिव हम प्रॉब्लम. हाँ, हम बहुत बहुत बार बातें करते हैं ना, that about women empowerment and about या women suffering through so much, but हम या men जिस तरीके से सफर करते हैं उसको बहुत बार overlook कर जाते हैं, यस, because यस, यस. हाँ, ये बिल्कुल, उतना बिल्कुल. पेनफुल नहीं नजर आता ना. हाँ, हाँ, हाँ. वो उसको. अब देखिए, मेरे लिए खुशी क्या है कि आप लोग खुश रहो, मैं खुश हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. आई एम ओके इफ यू ऑल आर हैप्पी. आई एम मोर देन हैप्पी. बट बोलते व्हाट इज दिस, यू शुड बी हैप्पी आल्सो. मैं आई एम बट प्लीज बी हैप्पी. इट्स माय रिक्वायरमेंट. Right, right. But this is a very important, issue which we now need to look into. कि मतलब है क्या, हाँ, मतलब हाँ, आखिर कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, एंड हाँ, तो इसमें anybody of you please feel free to chime in कि क्या, why two women in the Mm, house. I have I want to share one observation with Vikesh. अभी या आप जो बात कर रहे हो मैं इसी देर से सुन रहा हूँ. एक एक चीज मैं आपको बोलूंगा, और हाँ, it maybe I might be completely wrong and you may not like what I'm going to say, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा. तो हाँ. energetically what I'm picking is कि आप सेटल्ड नहीं हो आई से. बिल्कुल भी. यू आर वेरी वेरी मच एजिटेटेड, वेरी मच अनसेटल्ड फ्रॉम इनसाइड. बट ऊपर से आप बातें ऐसे कर रहे हो कि आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत है चीजों की, बट अंदर से आपको बिल्कुल, सेटलमेंट बिल्कुल नहीं सही है कह रहे हैं. बिल्कुल. तो फिर आप नहीं इस है, तरह से बिल्कुल नहीं बातें है. क्यों करते हो? हाँ, तो फिर आप ऐसे बातें क्यों करते हो कि एज इफ यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रास्प ऑफ थिंग्स, बट आपको सेटलमेंट तो है नहीं अंदर से. ठहराव तो मुझे फील नहीं हो रहा है आप में, पर आप बात ऐसे कर रहे हो कि यू अंडरस्टैंड एंड यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रास्प ऑफ थिंग्स. तो ऐसा क्यों? इस तरह ऐसा से बात इसलिए कि करके अगर आपको क्या मिल रहा है? मैं क्या बोलूँ उसको, कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तब तो और भी परेशान रहूंगा मैं. मेरे को लगता है. इफ यू लेकिन डोंट माइंड. ये तो डिस्ट्रैक्शन है ना. ये तो आप अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हो ना कि I like the आप Hindi word जामा पहनाना, so हाँ, आप बस जामा आप पहना रहे हो अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग का. दिखा रहे हो चीजों की. आप अंडरस्टैंडिंग बातें कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग की दिखा रहे हो, लेकिन वो फील तो नहीं हो रहा है. आपकी एनर्जी इतनी अनग्राउंडेड है, इतनी अनसेटल्ड है, आप इतना फास्ट बात कर रहे हो, इतना आपकी बातों में कोई ज़्यादा ठहराव नहीं है, आपकी वॉइस में ठहराव नहीं है, आपकी एनर्जी में ठहराव नहीं है, लेकिन आपकी बातों में इतनी ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की. तो ये किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हो? खुद को बोल सकता हूँ, किसको और को बना सकता हूँ. खुद को बोल रहा हूँ, बना रहा हूँ, और क्या कह सकता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. पर क्यों? व्हाट आर यू गेटिंग बाय दैट? ऐसे बातें करके आपको मिल क्या रहा है? ऐसे व्हाट, ये डिस्ट्रैक्शन से आपको मिल क्या रहा है? बट मैं कर भी क्या सकता हूँ. मेरे को सॉल्यूशन भी नहीं है. मैं कर क्या सकता द हूँ. मैं फर्स्ट अभी थिंग इज सोच. टू स्टॉप डूइंग दिस. हाँ, सॉल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब आप ये एक्सेप्ट करोगे कि शायद मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्लीट नहीं है. क्योंकि जब तक आप ये दिखाते रहोगे कि आपको हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, यू ऑलरेडी नो दिस, यू ऑलरेडी नो दैट, तो फिर आपके साथ कोई बात नहीं कर सकता. आपका कप ऑलरेडी बहुत फुल है, इसमें कुछ डालने की जगह ही नहीं है. सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो फिर सॉल्यूशन ढूंढो ना. फिर ढूंढने, अगर कुछ लेना है तो फिर लेने के भाव में आओ ना. लेने के भाव में तो आप हो नहीं. टेकन योर पॉइंट, टेकन योर पॉइंट. हम्म.
ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि हम चीजें सुनते हैं, देखते हैं, और आप बोल रहे हैं ऐसे बहुत लोग करते हैं, ये नॉर्मल है, ठीक है, होगा, बहुत लोग करते होंगे सफर, लेकिन वो लोग अपने अपने घर में, जस्ट बिकॉज बहुत लोग सफर कर रहे हैं इसका मतलब थोड़ी कि आप भी सफर करोगे। अगर ब- ठीक है बड़ी प्रॉब्लम होगी, आई अंडरस्टैंड, और जो अनामिका बोल रही है कि मैनी मैनी सफर फ्रॉम दैट, आई एग्री टोटली। बट जस्ट बिकॉज दैट इज द केस इसका मतलब थोड़ी कि हम भी इसको यस बोले और हम भी इसको झेले। यार मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूँ, बट मेरे मेरे अब भी जब वही बोलते हैं ना कि आदमी को वेट करने की जगह होनी चाहिए, मैं यही सोच सकता हूँ, मैं वेट किया और यही बोल सकता हूँ। हाँ, तो आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए इस चीज का ना, तो सबसे पहले आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा कि दान लेने के लिए, किसी को दान देने के लिए हाथ खोलना पड़ता है। हाथ उल्टा रखोगे तो कोई दान रख नहीं सकता उसको। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे तो आपको पहले इस भाव में आना पड़ेगा कि आई डोंट नो। अगर आप हमेशा ये बोलते रहोगे आई नो आई नो आई नो दिस, आई नो दिस, आई अंडरस्टैंड दिस, आई नो दिस, तो फिर जगह ही कहाँ है किसी को कुछ बोलने की। यू ऑलरेडी नो। फिर मेरा वही क्वेश्चन आता है, इफ यू ऑलरेडी नो देन व्हाई आर यू सफरिंग? So if you are still suffering, then you don't know much, हैं। ओके, or राइट। you have not applied anything that you know. So maybe the gap could be in two things. Gap could be you don't know the right thing. You think you know, but maybe you don't know the right thing. और if you know the right thing, then you have not done any work on it. आपने कोई एक्शन नहीं लिया है, आपने कुछ किया नहीं है, आप बस जान के बैठ गए हो, और आपको ऐसे लग रहा है कि जान के बैठ जाने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गैप कुड बी इन टू थिंग्स। नाउ आई डोंट नो व्हाट दोस टू थिंग्स आर। आई कैन ओनली टेल यू कि ये हो सकता है, वो तो आप ही बता सकते हो कि व्हाट दोस टू थिंग्स, विच ऑफ दोस बिल्कुल टू बिल्कुल। थिंग्स। क्या आपकी नॉलेज में गैप है या आपके एक्शन में गैप है? कहाँ है? मैं तो ये कह सकता हूँ कि दोनों में गैप है। गैप है कि अब मुझे जैसे आप, आई गॉट अ मेल दैट ट्राई टू डू मेडिटेशन आल्सो, ठीक है ना, फॉर 20 minutes, but I say I'm finding it difficult to do meditation for 20 minutes. I mean, my mind gets हाँ, divert. that's good. That's I, good. I saw your email. हाँ, that's good. I saw that email. uh, हाँ, good thing you brought that point. हाँ, I mean, हाँ, क्यों नहीं हुआ? uh, 20 मिनट भी क्यों नहीं निकले आपसे? अब क्यों नहीं निकले, अब क्या बोलूं मैं, जैसे आई एम स्टेइंग इन पीजी नाउ, राइट नाउ। अब आप सॉल्यूशन आई सॉल्यूशन विद माय बोल रहे हो कि रूममेट आपको आल्सो। सॉल्यूशन चाहिए, आपको आ रहा है। सॉल्यूशन बोल रहे हो, आपको सॉल्यूशन आ रहा है। दैट इज अ हाँ, ग्राउंडिंग मेडिटेशन। वो मूलाधार मेडिटेशन है ग्राउंडिंग के लिए, जिसकी मेरे हिसाब से आपको तो बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल सही है, मैं अभी करना अगर आप पड़ेगा मुझे ऑब्जर्व उसके करोगे बिना। अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे हाँ, अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि लास्ट हम्म, 10 मिनट में आप थोड़ा स्लो बोलना शुरू हो गए। हाँ बिल्कुल इससे पहले आप काफी फास्ट बोल रहे थे, अभी आप थोड़ा स्लो बोलना शुरू हो गए। क्यों? बिल्कुल। क्यों स्लो बोलना शुरू हो गए? क्योंकि इस समय आप सोच भी रहे हो। नाउ यू हैव गॉन इनटू कॉन्टेम्पलेशन। इससे पहले तक ना आप सिर्फ बात ही कर रहे थे, आप या सुन नहीं रहे थे, अब आप सुन रहे हो। अब आपकी आवाज भी स्लो हो बिल्कुल गई है, आपकी सही कह एनर्जी रहे भी हैं। स्लो हो गई है। यू आर स्टार्टिंग टू ग्राउंड नाउ। या तो यू या हैव टू। ये एब्सोल्युटली मूलाधार राइट। मेडिटेशन आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यू आर आस्किंग फॉर सॉल्यूशन, और आपके पास सॉल्यूशन खुद चल के आया है, और आप अब ये बोल रहे हो मेरे पास टाइम नहीं है। अब इस प्रॉब्लम को नहीं, टाइम है, आई दुनिया में गॉट कौन मंथ, सा आई इंसान गॉट आपके प्लॉट। लिए सॉल्व कर सकता है? मुझे ही टाइम है करना पड़ेगा, लेकिन बैठ आई नहीं नो पा दैट रहे। आई हैव टू आई हाँ, नहीं बैठ पाओगे। नहीं, आपकी वो अच्छा ठीक है, व्हाट रश्मि सेड आई अंडरस्टैंड। यस, नहीं बैठ पाओगे क्योंकि ग्राउंडिंग मेडिटेशन की प्रॉब्लम यही है कि इट इज नीडेड बाय पीपल हु आर टोटली अनग्राउंडेड। तो आई टोटली गेट दैट कि आप नहीं कर पाओगे शुरू शुरू में। हाँ ठीक है, एब्सोल्युटली। नहीं कर पाओगे, पर अपने आप को कमिट तो करो। कमिट ये करोगे ठीक है, बिल्कुल तभी तो बिल्कुल आदत कमिट बनेगी। करूंगा मैं। आई विल श्योरली ट्राई। और इट्स बिल्कुल टोटली ओके अगर आपसे नहीं हो पा रहा है शुरू बिल्कुल। शुरू में। इट्स टोटली ओके, वो सही है। वो नहीं हो पाएगा, मैं पहले से ही बता रहा हूँ, नहीं हो पाएगा क्योंकि आप बहुत अनग्राउंडेड हो।
आपकी बातों से, आपकी एनर्जी से ही फील हो रहा है कि यू आर वेरी अनबाउंडेड, वेरी अनसेटल्ड। आप मेडिटेशन के लिए बैठोगे, आपको 50 तरह की थॉट्स इधर उधर से आएंगी, एंड इट विल नॉट लेट यू सिट इन दैट मेडिटेशन। इट इज फाइन, इट इज फाइन, जस्ट लेट इट बी। वो धीरे 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 अपने आप कम होंगी। यू जस्ट नीड टू नो कि वो हो जाएंगी, बट आपको जिद करके बैठना पड़ेगा। ठीक है, हाँ करना पड़ेगा मुझे, आई नो आपको करना पड़ेगा। डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आई हैव टू डू इट। कोई ऑप्शन नहीं है, दो, देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो अदर ऑप्शन, यही दवाई। सचिन जी, यस आदित्य। एक मेरा पॉइंट है, पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत है। जैसे मेडिटेशन मुझे लगता है कि सबसे टफेस्ट एक्सरसाइज होता है, क्योंकि जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तब तक आप मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। तो जो कोशिश करने वाली बात हो रही है, तो उससे मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा कि क्यों ना पहले मन शांत करें और समस्याओं के तो प्रति थोड़ा देर के लिए शांति मन में लाएं, उसके बाद मेडिटेशन करें। क्योंकि मेडिटेशन जब आप बात कह रहे हैं कि मेडिटेशन जब आप करने जाएंगे तो आपका मन डाइवर्ट होगा और टेंशन आएंगे और ये आएगा। और जो हम लोग कहते हैं कि कभी खुद से मिले तो बहुत शर्मिंदा हुए, या बहुत ज्यादा सबसे बड़ी समस्या अपने में ही नजर आई। तो मुझे लगता है कि शायद मन शांत करना ज्यादा जरूरी है, फिर मेडिटेशन स्टार्ट करना। क्योंकि अगर एक बार मन शांत हो गया ना, तो समस्याओं को समाधान भी मिल जाएगा और मेडिटेशन भी हो पाएगा। मन शांत, जी, मैं शायद आपकी मन बात। शांत करने को ही तो हाँ मेडिटेशन बोलते हैं, नहीं? हम तो ऐसे सोचते नहीं, हैं। हाँ, आई वाज अबाउट टू आस्क द सेम, बट तो मन एक, शांत कैसे होगा? जैसे रश्मि जी, मैं एक एग्जांपल दूं। जैसे इस केस में वो मेडिटेशन करेंगे भी ना, तो इनका मन शांत हुआ नहीं, कर नहीं पाएंगे 2 मिनट ज्यादा, जो मुझे लगता है। नहीं, वो तो ठीक है, बट मन शांत कैसे होगा? नहीं, आई एम आस्किंग टू यू आदित्य। करना नहीं, मैं पड़ेगा, समझ मैं गया क्या, कि मैं क्या बोलूँ, मैं तो इसका, हाँ, एक आ, मन शांत ये करना एनालॉजी मुझे मैं समझ में आ बताऊं। रहा है कि आप एक बार एक्सेप्ट कर सकें कि अपनी जो सिचुएशन है। जी, सचिन जी, आप ऐड करना चाहेंगे तो हाँ करिए, मैं बाद में करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ मन शांत हाँ, करने का आई मुझे वुड समझ में से आता है कि कि आपको अपनी सिचुएशन थोड़ी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मतलब जैसी भी सिचुएशन है, बहुत सारी समस्याएं, हर किसी को समस्याएं हो रही है, तो एक्सेप्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे आप मेडिटेशन स्टार्ट करें तो थोड़ी शांति आती जाएगी, जो मेरा तरीका है चीजों को समझने का, करने का। तो हो सकता है गलत हो, सही हो। फिर आप धीरे धीरे मेडिटेशन स्टार्ट करें, तब आपका फोकस आता जाएगा। जैसे कि जो मेडिटेशन और ध्यान का कंसेप्ट है इंडियन ट्रेडिशन में, जितना मैंने पढ़ा, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, जितने भी सन्यासी जो होते थे वो अटैचमेंट से अलग होते थे। बट अटैचमेंट यहाँ पे नहीं हो सकता, लेकिन इन समस्याओं को एक्सेप्ट करते थे कि हमारी जो सिचुएशन ये है, मतलब जो यहाँ पे हम यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे बस हमें तपस्या करनी है और खाना खाना है, और मतलब पूजा करना। जैसे बुद्धा का जो एग्जाम्पल है, जो उनको जो खीर खिलाई गई थी, तो फिर से उनसे उनके बाद उनका ध्यान मेडिटेशन में लग गया या उनका कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो ये मेरा कहना है, हो सकता है सही हो गलत हो। हाँ। सो व्हाट आई वुड से कि बात तो सही है आपकी, और ये ऐसे चिकन एंड एग स्टोरी है इन फैक्ट कि विच वन गोज फर्स्ट एंड ऑल दैट। सो बोथ हैव टू हैपन। ये जो आप बात बोल रहे हो मन शांत की, इस तरह से, ये एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस भी कैसे आती है? एक्सेप्टेंस खुद से बैठ के तो आएगी नहीं, right? अगर क्योंकि वो आनी होती तो अभी तक आ जाती। तो ये जो आप बात बोल रहे हो, एग्जैक्टली इसी रीजन के लिए ही हम ये आज 11 बजे की कॉल्स, ये कॉल्स इसी पर्पज से ही हो रही हैं। तो व्हाट यू आर सेइंग इज 100% आई एग्री, क्योंकि समटाइम्स इन लाइफ यू नीड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट वे। अब जैसे मैंने विकेश को बोला, जब वो बात करना स्टार्ट हुआ था तो वो बहुत फास्ट फास्ट बात कर रहा था, इस एनर्जी वजह, और फिर आई ब्रॉट टू हिज अटेंशन कि उसकी एनर्जी बहुत अनसेटल्ड है, और फिर नाउ ही इज स्टार्टिंग टू टॉक वेरी स्लो एंड ऑल दैट, एंड आई डोंट थिंक ही इज ट्राइंग टू टॉक स्लो, ही इज टॉकिंग स्लो नाउ। so sometimes a different perspective is required to do that. तो ये 11 बजे की कॉल जो हमने रखी है, ये इसी पर्पज से ही रखी है, ताकि आप आओ अपने मन को शांत करने के लिए। आपका कुछ इश्यूज हैं तो उसके बारे में बात करो, और हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव सो दैट यू कैन डू दैट। तो ये कॉल्स का वही पर्पस है। नाउ समटाइम्स
जब आप बीमार होते हो तो आपको पता है कि आप जब बीमार होते हो तो आपको दवाई भी खानी है और आपको खाना भी खाना है, लेकिन आपको कई बार खाना खाने का मन नहीं होता है, आपको आपका टेस्ट बड चले जाते हैं, आपको खाना खाने का मन ही नहीं हो रहा है, आपको भूख ही नहीं लग रही है, पर फिर भी हम जबरदस्ती खाना खाते हैं ना, क्योंकि दवाई खानी है और दवाई के साथ खाने खाने की जरूरत है। ये ऐसे ही है। So this meditation and talks both go hand in hand. One will not work. सिर्फ मेडिटेशन से काम नहीं होगा और सिर्फ टॉक से भी काम नहीं होगा, दोनों, दवाई भी चाहिए और खाना भी चाहिए, तभी इंसान ठीक होता है। तो ये दोनों चीजें साथ ही साथ करनी चाहिए। इसमें हम ये नहीं बोल सकते कौन सी पहले करूं कौन सी बाद में करूं, ये साथ में ही चलने की जरूरत है। हाँ नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं सचिन जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ कि वो पर्सपेक्टिव सही है। जो ऑब्जर्वेशन है विकी, थोड़ी सी बेचैन लगे स्टार्टिंग में जब उन्होंने स्टार्ट किया था, काफी मतलब मुझे जो समझ में आया बात से, हो सकता है मैं पूरी तरह से गलत हूँ, बट आप काफी बेचैन लगे, और मतलब काफी नर्वस लगे, मतलब या बहुत ज्यादा परेशानी होती, क्योंकि जब हम हाँ परेशानी होते हैं तो बहुत ज्यादा मतलब किसी को अगर गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो उसका मतलब होता है कि वो पीछे से बहुत ज्यादा परेशान है, मतलब या काम या रिलेशनशिप में कुछ नहीं परेशानी सही, ज्यादा है, तो वो उसको ज्यादा गुस्सा आता है, वो ही ज्यादा बिल्कुल मतलब सही कह जो रहे आप हैं। कह रहे थे कि तेजी से तेज तेज बोलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सब चीजें तो बिल्कुल सही है, एंड आदित्य, आई अग्री टू व्हाट यू सेड एंड एवरीथिंग वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट। लेकिन किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के पहले हम ग्राउंडिंग की जब बात कर रहे हैं, सो इट्स इम्पोर्टेंट टू फर्स्ट एक्सेप्ट कि प्रॉब्लम है। क्या होता है ना कि हम अभी क्या है, हम इंटरनेट एरा में रहते हैं, देयर सो मच इंफॉर्मेशन एंड देयर सो मच डाटा आउट देयर कि हर चीज का सोल्यूशन इज ऑन इंटरनेट। तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स निकालते हैं एंड देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि अच्छा ऐसा तो है ही। जैसे कि मैं कह रही थी कि मोस्ट ऑफ माय क्लाइंट्स आर गोइंग थ्रू इट, तो हम ऐसा मान लेते हैं ऐसा तो है ही, ठीक है, मतलब दिस इज दिस एंड दिस इज दैट, एंड हमें लगता है कि अब हम सीख गए हैं, बट सीखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सीखना इज नॉट एक्सपीरियंशियल लर्निंग ना, क्योंकि हमें वो रियलाइज नहीं हुआ है अभी तक। एंड ग्राउंडिंग इज टू रियलाइज दैट। तो पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम सिर्फ पढ़ने से या कोई भी चीज समझ लेने से नहीं सॉल्व होगी, क्योंकि अगर समझ लेने से सॉल्व होती तो समझ तो सबके पास है ना, हमेशा से रही है, बचपन से जब से हम पैदा हुए, तो माइंड इज ऑलवेज देयर। बट पहले तो ये जामा जो हम पहनाते हैं ना कि मतलब हो गया अभी ऐसा होगा या वैसा होगा, एंड हमने खुद ही क्वेश्चन भी कर लिया कि हमें ये प्रॉब्लम है, और हमने खुद जवाब भी दे दिया कि ये सॉल्यूशन है। ओके, तो हम तो पूरी सर्कल में खुद ही घूम रहे हैं, हम उसी सर्कल में घूमे जा रहे हैं। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि वी स्टॉप एंड वी फर्स्ट एक्सेप्ट कि हाँ प्रॉब्लम है। हम उसको जामा नहीं पहनाएंगे, मुझे बुरा लग रहा है, मैं टेंशन में हूँ, या मुझे स्ट्रेस है, या जो भी है, पहले तो है ना, अब क्या करना है आगे। और मानना ये पड़ेगा जो पहले मैंने बात। ट्राई किया हाँ, ये नहीं मानना तो पड़ेगा वर्कआउट पहले। किया। हाँ, और मानना तो पड़ेगा another पहले thing कि प्रॉब्लम I है। add to this, बिल्कुल बिल्कुल विकेश, ये बिना माने देर इज नो पॉइंट, अदरवाइज यू विल नो कि हाँ मेरे को तो ऑलरेडी पता है, मेरे को तो ऑलरेडी सॉल्यूशन पता है। और ठीक है, मैं आपकी रिसर्च या आपकी अंडरस्टैंडिंग को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने काम नहीं किया है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि शायद कई बार हमें जो मिल जाता है वो नहीं सही सॉल्यूशन, या वो इनकम्प्लीट हो सकता है, तो हम उसको ही हाँ बिल्कुल। पूरा या कंप्लीट मान के बैठ जाए, तो फिर उसका हम मेजरमेंट क्या है, हमें कैसे पता चलेगा? हमें सिर्फ इस चीज से पता चलेगा कि हमें जो पता है क्या उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, क्या मेरी लाइफ में डिफरेंस आया है जो मुझे चाहिए। अगर नहीं आया है तो देन आई नीड टू ड्रॉप इट, देन आई नीड टू से कि आई डोंट नो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से दिस, आई डोंट नो, क्योंकि जब तक हम ये सही से बोलना नहीं सीखेंगे ना कि आई डोंट नो, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। और गोइंग बैक टू आदित्य का जो पॉइंट था, तो आदित्य आपने जो पॉइंट रखा है वो बिल्कुल सही है, आई अग्री। इनफैक्ट मैं उसमें एक और चीज ऐड करूंगा। अच्छा।
आयुर्वेद की जो डेफिनेशन होती है हेल्थ की, आयुर्वेद बिलीव्स कि हेल्थ इज नॉट द एब्सेंस ऑफ डिजीज बट इट्स अ बैलेंस बिटवीन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो हम अभी माइंड और स्पिरिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि माइंड को कैसे शांत करना है और मेडिटेशन, बट बॉडी प्लेज इक्वल रोल एज वेल, सो विच मीन्स दैट we have to also ensure that body is healthy, we are eating healthy food, we are eating correct food, we are eating on time and all that, क्योंकि ये चीजें भी ऐड करती हैं हमारी मेंटल वेलबींग को, और हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हम ठीक से नहीं खा रहे हैं, टाइम पे नहीं खा रहे हैं, ठीक टाइप का खाना नहीं खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कैसे भी खा रहे हैं, हम अनसेटल्ड अंदर से फील कर रहे हैं, ऑल दैट this does create unnecessary emotions inside us, and then those emotions create unnecessary thoughts inside us. So the balance has to be three ways, not only just meditation. Meditation is not a cure for anything as such like that, but yes, meditation कॉम्बिनेशन में जरूरत है, बिना मेडिटेशन के ये ट्रायंगल कंप्लीट भी नहीं होता है, बट सिर्फ मेडिटेशन से सॉल्व भी नहीं होगी प्रॉब्लम। तो कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड वेयर वी स्टार्ट की, हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारी दो पार्ट्स हैं, कि हम माइंड, we can create a facility by which we can talk about things and people can discuss कि what's on their mind and they can put out in a open forum, और यहाँ पे हम इसके बारे में बात करें, डिस्कस करें, कोई सॉल्यूशन निकले तो अच्छी बात है। हम कोई, अब जैसे आज हम ये बात कर रहे हैं, आपने ये पॉइंट उठाया कि इसके लिए ये भी जरूरत है, तो दिस इज अ वैल्यू एड ना। अब विकेश को ये भी मालूम पड़ा कि हाँ सिर्फ मेडिटेशन से नहीं होने वाला, मेरे को बात भी करनी है, आई नीड टू बी ओपन एज वेल। तो अब ये फोरम है, यहाँ पे बात करनी है किसी और में, लाइक नीड टू बी ओपन एंड टॉक अबाउट दिस थिंग्स, गेट योर माइंड क्लियर विद दिस थिंग्स। खुद ही अपनी दिल दिमाग में ही सोचते रहोगे तो ये चीजें सॉल्व नहीं होंगी। तो नाउ दिस पॉइंट यू हैव एडेड, यू हैव कंट्रीब्यूटेड दिस पॉइंट टू दिस कॉन्वर्सेशन कि ये भी जरूरत है। फिर हम ये भी बोल रहे हैं कि अपनी डाइट, अपने हेल्थ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, प्राणायाम्स करो, अपनी डाइट के ऊपर ध्यान रखो, ये भी जरूरी। अब वो तो हम नहीं कर सकते ना आके, तो वो तो विकेश को ही करना पड़ेगा, या वो तो हम सबको ही करना पड़ेगा। हाँ बट हम बातें कर सकते हैं, हम अपनी अपनी लाइफ में हमारे जो रूटीन्स हैं जिससे हमें फायदा होता है, हम वो चीजें शेयर कर सकते हैं। आई कैन शेयर कि मैं क्या करता हूँ, अनामिका कैन शेयर वो क्या करती है, रश्मि कैन शेयर वो क्या करती है, हम अपने अपने रूटीन शेयर कर सकते हैं कि हमारी ये हैबिट्स हैं। अब उसको पिक करना, उसमें से कुछ अच्छा लगे तो आप यूज कर लो, नहीं तो अपना देख लो, बट वो तो विकेश को या हम सबको खुद ही करना पड़ेगा। बट ये फोरम के थ्रू हम ये नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं, और वो पर्सनल कर रहे हैं। और मैं इस चीज पे ही बार बार जोर डाल रहा हूँ कि पर्सनल, ऐसे नहीं ये कर सकते वो कर सकते, क्योंकि हमें गूगल नहीं बनना है यहाँ पे बैठ के कि ये भी करना है। जो हम कर रहे हैं ना वो शेयर करें कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, इससे मुझे ये फायदा हो रहा है, आई एम शेयरिंग दिस। बाकी दुनिया जहान में क्या नॉलेज है ना, वो बुक्स भरी पड़ी हैं, गूगल भरा पड़ा है, सब लोग अपनी अपनी रिसर्च कर सकते हैं। सो वो नहीं बनना है हमको यहाँ पे। अपना अपना शेयर करो कि हमारी रोज की रूटीन क्या है, हम अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए हम क्या करते हैं। तो आई विल शेयर कि मैं क्या करता हूँ, एक टू स्टार्ट विथ कि one of the things ki for some time now, I have reduced my intake of carbs a lot, and I'm focusing more on protein and vegetables. So that is what I focus more on, or that includes eggs, meat, vegetables, all that kind of things. I heavily go on that. Then every morning, at least one week in a month, I do like a full detox of the body. तो आज ही मैंने अभी लास्ट 5 दिन से चल रहा था, अभी दिस इज माय 5th डे दैट आई एम डूइंग। तो मैं यूज करता हूँ पतंजलि का एक प्रोडक्ट आता है कायाकल्प करके, पाउडर भूसा टाइप होता है वो, उसको प्रिपेयर करते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस आपको उस पर मिल जाएंगे पैकेट पे, तो यू कैन चेक इफ पीपल डोंट नो। तो दैट आई यूज एंड इट इज फैंटास्टिक। सो आई कैन टेल यू, लाइक मेरे को तो आई एम रियली very, I'm liking this product, so it's very good, and I do at least twice a month. Every 15 days I do 4 or 5 days in a row of that one. और जब वो नहीं मिलता है या मेरे को कुछ उसको चेंज करना है, तो आई ऑल्सो ड्रिंक करेला जूस। तो आई हैव माई ओन रेसिपी ऑफ करेला जूस एंड आई डू दैट, सो 4 or 5 days. These two things I do regularly.
to keep my body healthy. बॉडी हेल्दी रहती है तो हमें एक सर्टन टाइप की ग्राउंडिंग फील होती है. हम इतना मसाले वाला खाना, हीट हॉट ये सब खाते रहते तो हम अंदर से इतनी वो होती है ना, अनसेटल्ड हो जाती है बॉडी की. फिर छोटी छोटी चीजें भी हमको परेशान करने लगती हैं, तो अननेसेसरी हम ऐड करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स में. तो दीज आर द थिंग्स. प्राणायाम मैं बहुत रेगुलरली तो नहीं करता हूँ, हाँ बट कर लेता हूँ कभी कभी. तो ये योगा मुझसे नहीं होता है ज़्यादा रेगुलरली, बट आई डू अ लॉट ऑफ वॉकिंग. तो रोज का मैं ऑलमोस्ट काउंट करूँ तो 2.5-3 किलोमीटर वॉक तो मेरी हो जाती है रोज की. सो आई रियली लाइक वॉकिंग, and this is the physical aspect by which I take care of things. And I feel कि बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, इन तीनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा. माइंड के लिए हम ये कॉल्स कर रहे हैं, स्पिरिट के लिए हमने वो मेडिटेशन दी है, और बॉडी के लिए we all need to stick to some kind of routine, pick up a routine, healthy regime. So that's my thing. Thanks guys. Yeah, I would just like to add on to what Sachin is saying. So yeah, it's kind of a repeating point कि and all the information which we consume from the internet or anything, तो वो गलत नहीं है, वो सही है. ठीक है, वो अपनी अपनी जगह पे सब अपना शेयर कर रहे हैं, that's all fine. बट सबसे ज्यादा एक जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस डिस्कशन का, ये समझना कि क्या हम रेडी हैं वो करने के लिए. सो मैं इतने सारे लोगों को मेडिटेशन कराया, एंड आई वेरी ऑफन वॉच इट कि लोग मेडिटेशन के बारे में पढ़ते हैं, ओके, एंड दे रीड मोर अबाउट मेडिटेशन देन एक्चुअली डूइंग इट. ओके, सो एक कॉमन फैक्टर विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर टू अकम्प्लिश एनीथिंग, चाहे आप कोई भी रास्ता चूज करो, कोई भी पाथ हो, कोई भी स्कूल ऑफ थॉट हो, कुछ भी हो, बट आर यू विलिंग टू डू इट? क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ते हो एंड देन यू से कि मुझे पता चल गया, जैसे अभी सचिन ने शेयर किया, एंड हम सब ये बोल दें कि हमें पता चल गया, अच्छा ऐसा होता है, बट अगर हम वो करेंगे ही नहीं, देन इट मेक्स नो सेंस, राइट? सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज रेडीनेस, विलिंगनेस, कि आप विलिंग हो वो ट्राई करने के लिए. हो सकता है व्हाट सचिन सेड मे नॉट वर्क आउट फॉर यू, बट आपने ट्राई किया. You can say that once you have tried it. So ready होना कि हाँ, मतलब now I am ready to actually change my life, और सिर्फ बोल के नहीं कि मैं ये करूंगा या वो करूंगा, but actually करके, practicing it in your daily life कि yes, अगर मुझे food है, और if it is exercise or if it is meditation or anything, but मैं वो करूंगा and I am ready to do that. तो willingness बहुत ज्यादा जरूरी है, willingness and practicing it. So practicing is more important. आप कोई भी एक छोटी सी भी चीज उठा लो, मतलब not everything is necessary. जैसे कि आदित्य was talking about गौतम बुद्ध, right? So विपश्यना मेडिटेशन में it's not like कि आपको enlightened होने के लिए वो exact जो path है वो सब कुछ follow करना पड़ेगा. अगर आप एक चीज जो भी उन्होंने सिखाई है ना वो भी कर लोगे ना, that has the capacity to extrapolate to everything else. सेम गोज विद योग सूत्रा. ओके, तो अगर आप यम और नियम का एक नियम और एक यम भी फॉलो कर लेते हो ना, दैट हैज द पावर टू एक्सट्रापोलेट टू एनीथिंग एल्स. सो डजंट मैटर कि आप कौन सा पाथ चूज करते हो, बट चूज द पाथ एंड प्रैक्टिस इट फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम. एंड उसके लिए डिटर्मिनेशन इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि पहले मैं करूंगा एंड देखूंगा, एंड आई एम willing to get up on the cross and see for myself if it works or not, rather than just simply saying कि हाँ ये ठीक है, ये नहीं है. हो सकता है नहीं ठीक हो, फाइन, नॉट नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, देन कुछ और ट्राई करेंगे. बट हम विलिंग तो हूँ कि हम करेंगे. अभी तो हम जामे में मोस्टली लोग हम जामे में ही अपनी जिंदगी निकाल रहे हैं कि हाँ ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा है, ये वैसा है. सो वो जामा उतार के थोड़ी देर के पहले, हाँ मेरी तो ये प्रॉब्लम है, अब मैं क्या करूंगा, नाउ व्हाट एम आई विलिंग टू डू फॉर दिस, एंड एक्चुअली डूइंग इट, नॉट जस्ट सेइंग इट. सो या विलिंगनेस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. अदरवाइज चाहे हम कितने भी पाथ्स उठा लें, नथिंग इज गोइंग टू वर्क. हम एक भी उठा लें और उस पर ढंग से चल लें, इट इज गोइंग टू वर्क, एंड यू हैव टू डू योर वर्क, नोबडी एल्स कैन वर्क इट फॉर यू. वो बहुत ज्यादा जरूरी है.
यूर ये ना, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. यू हैव टू डू योर सेल्फ, नो वन एल्स विल डू. वी हैव टू, खुद को करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं. हमारे लिए कोई करके नहीं देगा, चाहे वो कोई भी काम हो. खुद आप प्लीज आदित्य मुकेश जी, प्लीज. मैं आपको दो सिंपल एक्सरसाइज जी, जो सचिन जी ने कहा वो भी काफी सही है, अनामिका जो ऐड कर रही है वो भी सही है. एक सिंपल एक्सरसाइज है, पता नहीं आप करके देखिएगा, अच्छा लगेगा या ना लगे. आप जब भी दिन खत्म होता है तो दिन की जो नहीं भी नहीं, बिल्कुल अच्छी बताइए. चीजें, दिन की जितनी भी अच्छी अचीवमेंट है, मान लीजिए आपने अपने लिए कोई ट्रीट दे दी, जैसे अगर आप अकेले रहते हैं तो कोई साथ में फ्रेंड्स ना हो तो खुद को एक ट्रीट दे दी, या कुछ भी अच्छी चीज जो आपके साथ उस पूरे दिन में हुई हो, सोने से पहले 15 मिनट 10 मिनट बिल्कुल बिल्कुल. उसको आप रिकॉल कीजिए कि क्या अच्छा रहा, थोड़ा सा उसमें सोच लीजिए. जैसे मेडिटेशन तो आप करें और उसको आप थोड़ा सा खुश होंगे. नेगेटिव चीज बिल्कुल तो बहुत बिल्कुल सारी चीजें होती रहेंगी, पॉजिटिव चीजें जितनी हो, मतलब 15 मिनट बिल्कुल 10 मिनट 5 मिनट आपको अच्छा लगेगा कि हाँ आज मैंने ये अचीव किया है. और ये कहना और कहने बिल्कुल में आपको बिल्कुल. कम पता चलेगा, लेकिन अब जब आप रियल में करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा. एक और दूसरा सजेशन ये होगा कि आप दिन में, सप्ताह में या महीने में या साल में, जब भी जो भी आपकी फेवरेट एक्टिविटी हो, किताब पढ़ना, घूमना या लोगों से बातें करना, जो भी अपने लिए करें. आधा घंटा एक बिल्कुल घंटा बिल्कुल. सप्ताह में निकाल सके तो बहुत ठीक है. अच्छा. महीने में निकाल सके, जैसे मुझे घूमना पसंद है तो मैं क्या करता हूँ कि एक सप्ताह के लिए साल भर में कम से कम कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं ऐसी जगह जाऊं जहाँ पे नेटवर्क ना हो, या ऐसे जैसे विपासना की बात बता रही थी अनामिका, तो अनामिका विपासना में एक एक्टिविटी सोचिए 3 दिन के लिए, ना आप मोबाइल यूज करेंगे, ना हम किसी से बात करेंगे, बात ही नहीं करनी है. शायद मेरे अनुसार जहाँ मुझे जितना मुझे ओके. पता है, अनामिका ज्यादा बता पाएंगे, तो बात नहीं करेंगे. 3 दिन आपको अपने मतलब एक रूम दे देते हैं शायद, और वहां पे आपको अपने खुद के साथ रहना होता है. तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको अच्छी लगती हो. नहीं नहीं, बिल्कुल. नहीं और नहीं, माय अगर फादर यूज्ड टू विपासना का डू तो मुझे नहीं पता, विपासना. विपासना का डिटेल्स आपको अनामिका दे पाएंगी ज्यादा. मैंने सुना है. नहीं, माय फादर तो यूज्ड टू डू. मतलब मैं जो मुझे समझ में आता है कि वो 3 दिन की एक्टिविटी के बाद जो होता है कि आपको अपने आप को थोड़ा सा आप और सुकून महसूस करेंगे, या अपनी फेवरेट एक्टिविटी करें. जैसे मुझे घूमना पसंद है तो मैं सप्ताह में साल में कम से कम 7-8 दिन वहां जाता हूँ जहाँ पे शायद मेरे फ्रेंड सर्किल नहीं जाते हो या कुछ ऐसा हो. तो ये मेरा सजेशन होगा. बाकी आप ये जो अचीवमेंट वाली बात है वो एक बार ट्राई करके देखिए सर. मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत श्योर ज्यादा आपको श्योर अच्छा श्योर. फील होगा अपने बारे में. क्योंकि सर आप जो समस्या में हैं या जो भी चीज सोच रहे हैं, लेकिन आप तब भी आप ये सोचिए कि आप तब भी अच्छा कर रहे हैं. आपने रियलाइज किया चीजों को करना है. और आप बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बस ये सोच ही रहेंगे हमको और क्या करना चाहिए. नहीं, और बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. आई विल श्योरली ट्राई टू डू दिस एंड विल श्योरली टेल दैट व्हाट क्या फर्क रहा, उससे कर पाया कि नहीं कर पाया, उससे मेरे को क्या हो रहा. आई विल श्योरली शेयर द टीम आल्सो. जी बिल्कुल बिल्कुल. ये मेरा एग्जाम्पल है, जैसा अनामिका भी कह रही थी. जो भी आपको अच्छा लगे वो करके देखिए, और धीरे धीरे कीजिए. ऐसा नहीं कि आप, श्योर. जैसे मेडिटेशन करना है आपको, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ. पहले 1 मिनट, फिर दूसरे दिन 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं. अचानक आप सोचेंगे ना 15 दिन बिल्कुल 15 का होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं हो पाएगा. जैसे सचिन की बात बहुत सही है कि फिजिकल एक्टिविटी भी काफी हेल्पफुल होती है. दवाइयां अपना काम करेंगी, नहीं आसन बिल्कुल अपना काम बिल्कुल. करेंगे, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आप करें तो और भी अच्छा रहेगा. नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे बिल्कुल सही कह रहे विकेश की बात सुन के एक एक थॉट आया कि विकेश बोल रहे ना कि मेरे फादर भी विपासना के लिए गए थे, तो हो सकता है आपके फादर ने भी किसी के साथ बात की होगी कि मेरी लाइफ में ऐसे 4 लेडीज हैं एंड देन समवन हैं. आस्क्ड हिम टू गो टू या श्योर विपासना. श्योर श्योर. या Problem associate 4 women and then अब समझ में आ रहा है ना. So why men actually get this whole thing of finding peace. जर्नी वही शुरू होती है. एक मुझे एक जोक याद आया. एक बार विकेश की बात भी एक जोक याद आ रहा है. एक बार एक होता है इंसान ना, वो
साधु महात्मा उसको किसी के पास जाता है तो उसको कहीं से पता चलता है कि ये बहुत पहुंचे हुए साधु महात्मा है, उनको सब प्रॉब्लम्स का आंसर पता होता है। तो वो जाता है तो देखता है कि बहुत ही बड़ी तेजस्वी से साधु बैठे हैं, 3-4 साधु ऐसे लाइन में बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं। तो उनका जो हेड होता है उनसे पूछता है कि साधु जी मेरी लाइफ में मेरी वाइफ के साथ बहुत प्रॉब्लम है एंड ऑल दैट। तो बड़ी देर तक ऐसे बताता है कि सारी प्रॉब्लम्स ना मैंने बहुत लोगों से मिला हूँ, मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला, लेकिन मुझे कई लोगों ने आपका रेफरेंस दिया है और मैं बहुत ढूंढ ढूंढ के आपके पास आया हूँ ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। तो वो साधु उसकी तरफ देखते हैं, थोड़ी देर के लिए मौन रहते हैं, फिर साथ वाले साधु की तरफ देखकर बोलते हैं भाई के लिए भी एक चटाई लगा देना। Right. सही है। Yeah. अच्छा, एक बात कहता हूँ, अगर जब टाइम निकालना चाहो ना तो सब निकल जाता है, निकालना पड़ता है, अगर चाहत होनी चाहिए। चाहत बहुत बड़ी चीज है। अभी देखिए, मैं मंथ एंड चल रहा है, मैं ऑफिस के केबिन में बैठा हूँ, बट फिर भी मैंने टाइम निकाल के ज्वाइन कर लिया, ठीक है, फिर भी मैंने ज्वाइन कर लिया है। अगर होता तो मेरे पे एक्सक्यूज था, मैं तो ऑफिस में मंथ एंड है, काम करना है, मैं नहीं ज्वाइन कर सकता, बट ठीक है, मैंने बोला यार ट्राई कर सकते हैं, क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोशिश तो करता हूँ, कभी कभी बाई चांस मुझे कटना पड़ेगा, बट लेट्स ट्राई, कर लिया, वो वाली बात है। लुक्स लाइक कि आज की कॉल आपके लिए ही थी। हाँ सॉरी, मैंने पूरा नहीं सॉरी, या आई विल टू यू आर सेइंग ना कि मैं ऑफिस से भी मैंने टाइम निकाल के किया, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये शायद दिन आज का आपके लिए ही था, दैट इज व्हाई यू डिड दैट। या ऐसे हमारे साथ थैंकफुल टू ऑल ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, थैंक्स जसप्रीत एंड रश्मि, दे नो कि हाँ, कई बार ऐसे हुआ है कि हम लोगों ने ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे बात की है जो इन लोगों का कुछ चल रहा था एंड दे फेल्ट कि दे हैड टू जॉइन द कॉल टुडे एंड देन वी टॉक्ड अबाउट दैट। तो पहले से कोई ये भी नहीं था, हमारा ऐसा कुछ शेड्यूल नहीं था कि हम इस टॉपिक पे ही बात करेंगे, बट दिस हैज हैपेंड मेनी टाइम्स। तो आई ऑलवेज फील कि हम अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा वो नहीं देते, इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसको सुनते नहीं है, बट if you are in touch with your intuition, it guides you very well. So probably your intuition guided you today कि आज की कॉल ज्वाइन करनी है, इम्पोर्टेंट है, and you made time to come because यही होने वाला था आज। या बिल्कुल मेरे लिए आज से होना था। चलिए, okay, anything else? Yeah, should we wrap up? Okay. I think I just wanted to add, मुझे एक चीज ऐड करनी थी कि हम बहुत in many points in our life we forget that there are many things जो हमारे कंट्रोल में होती नहीं है और हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो मे बी विकेश जी आप ये भी ट्राई करके देखिए और ये भी मे बी चेक करके देखिए कि कहीं ये बिल्कुल सही जरूरी है क्या कि ये मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो और सिचुएशन से भाग के कुछ नहीं होता है, सिचुएशन से भाग के कुछ नहीं होता, ये भी है। हाँ, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उन्हीं के अंदर आंसर होता है, लेकिन वो शायद आप पे ढूंढ रहे हैं। बट कभी कभार चुप रहना भी ठीक ही है, क्योंकि वो खुद ही समझ जाएंगे। ठीक ही सही Just one tip. बिल्कुल सही। या नहीं, थैंक्स बिल्कुल। थैंक्स। और जसप्रीत, कोई comment? You've been very quiet. No, I was just listening it, and moreover, some guests are here at my place, so I was just listening. I didn't want to miss the session, but yes, it was a great intake, like action, and yes, we have to know the things. We always in the mode of knowing things, but we are not into the action of accepting the things.
So that's also one another perspective, which you also give us a light on that. That was a big intake for me from today's session. Thank you so much. Sanjay, you always contribute one or the other things. I never Mm. miss out because I have been to this emotional journey since very long. So I'm really realizing my pattern of behavior. So that's really enlightened me now to come out from that trauma. So thank you so much. You are contributing a lot. Thanks. Thank you, Jaspreet. Aditya, anything before we wrap up? Anything you want to say? नहीं, मुझे ये चीज अच्छी लगी कि जैसे आजकल जो हो रहा है कि हम लोग अपनी समस्याओं को बात नहीं करते या अपनी बातों को बताना नहीं पसंद करते। जैसे मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी समस्याओं का सोल्यूशन बस सिंपल सा ये है कि अगर आप किसी से आधा घंटा 1 घंटा बात कर ले अपने टॉपिक के बारे में और वो आपको नॉट जज ना करे, मतलब ना कोई ओपिनियन दे ना कोई जज करे, तो उसमें ही आपको सोल्यूशन निकल जाएगा। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि आधा घंटा 1 घंटा का जो सेशन है इसमें लोग बात कर रहे हैं, हम किसी को जज नहीं कर रहे, जो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहे हैं या सामने वाले की बेस्ट प्रैक्टिसेस में कुछ ऐड कर रहे हैं, क्योंकि कोई सही गलत नहीं होता। बस मुझे जो समझ में आता है कि अगर हम इसी तरह से नॉन जजमेंटल अप्रोच के साथ बातचीत करें तो काफी कुछ सिंपल सा समझ में सिंपल नजर आएगा, rather than जो कॉम्प्लिकेटेड नजर आता है हमें नॉर्मल चीजें। बिल्कुल, बिल्कुल, totally agree. Yeah, Okay, and Aditya. that's what we do here. मतलब हम यही कोशिश करते हैं, तो every fortnightly और every weekend we'll see, हम ये calls करेंगे, so you all are always welcome to join. जैसे आज हमने विकेश के बारे में विकेश की सिचुएशन डिस्कस की, ऐसे ही एवरी टाइम समथिंग और द अदर कम्स अप, एंड हम अलग नहीं हैं। द थिंग इज कि जो विकेश फेस कर रहे हैं वो और भी लोग फेस कर रहे हैं, हम भी फेस कर रहे हैं, एवरीबडी इज फेसिंग। तो चाहे प्रॉब्लम किसी की भी हो और कोई भी क्यों ना हो, इट ऑलवेज हेल्प्स, यू नो, ऑल ऑफ अस। सो Yeah, yeah, अगले absolutely right. संडे या फिर मे बी Absolutely right. नेक्स्ट संडे we'll all meet again. Great. Sure, 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 sure. I will try. I will try. I will surely try to join. I will surely try. I may not able because I may be with Join. my wife. I may not. I will not join. If I'm with my wife, I will not join. Bring her Please also. don't mind. Bring Please her don't mind. also. Please don't mind. No, we don't mind Try to join as well. meeting her. Yeah. Let's try. Let's try. Let's see. Let's see. Okay. Great. Chalo. Yes, Jaspreet, you want to say something? Sure. Okay. Jaspreet, you raised your hand. Do you want to say something? Yeah, हटा दिया. Okay. Maybe. Thank you. चलो. Sorry, that was by mistake. Yeah. So yeah. Okay, okay, okay. No problems. So let's wrap up the call. Okay, guys. Thank you so much. We can joining, continue everyone. this discussion in the group.